নমস্কার, সকলের সাথে সমাজের মাঝে এপি অকপট আছে। সঠিক তথ্য খবর তুলে ধরাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। সত্যনিষ্ঠ খবর দেখতে চোখ রাখুন এপি অকপট নিউজের পর্দায়। আর আপনাদের যদি আমাদের চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব ও ফলো করে আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা প্রত্যেকেই অতি সাধারণ মানুষ, যারা কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলি। আপনি নিশ্চয়ই কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে হয় আপনাকে। বিশ্বাস করুন, আমি যখন মনে করছিলাম একটা সময় জীবনের এই কর্দমাক্ত জীবন মধ্যে ঢুকে গিয়ে সমাজের এই অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে প্রত্যেক দিন চেয়েছিলাম ঈশ্বর আমার মৃত্যু দাও, এক মুহূর্ত বাঁচার সাথ ছিল। কিন্তু একটা জানেন, হঠাৎ একদিন দেখলাম 3 ইডিয়েট একটা ফিল্ম, পুরোটা দেখলাম। বিশ্বাস করুন, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের যত এই যে এখনো প্রাণ নিয়ে চলছি, লড়াই করছি, কাজ করছি, কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি, নিউজ করছি, ওই 3 ইডিয়েট ফিল্মটা দেখে একাধিকবার দেখেছি। কতবার যে দেখেছি তার মানে, এবং অনেককে আমি এই কথা বলেছি। আজকে ওই 3 ইডিয়েট সিনেমাটা দেখে বা ফিল্মটা দেখার পর আমরা যারা পজিটিভ হতে পেরেছি, আমার মতন যারা অনেক অসংখ্য মানুষ পজিটিভ হয়েছে, জীবনকে ভাবতে শিখেছে, ক্রিয়েটিভ করবার কথা ভেবেছে, ইতিবাচক ভাবনা ভাবতে পেরেছে, ওই 3 ইডিয়েট ফিল্মটার যাকে কেন্দ্র করে করা হয়েছিল আপনার তো মনে আছে, চংচু ওয়াংরু, র্যাঞ্চো দা চাঞ্চো, আমরা দেখেছি না সেই ফিল্ম? যাকে তাদের লাদাখের সেই বিখ্যাত দেশের গর্ব ইঞ্জিনিয়ার, বলতে গেলে বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, সমাজ সচেতক, সেই সোনাম ওয়াংচু আজকে মৃত্যুর পথে। যাকে উদ্দেশ্য করে ওই ফিল্মটা করেছিল 3 ইডিয়েট, যাকে দেখে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আমির খানের ওই ফিল্ম দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে নতুন জীবনে চলার পথ তৈরি করতে পেরেছে। আমার বিশ্বাস আমি যেমন পেরেছি, সেই ভদ্রলোক আজকে মৃত্যুর পথে। কেন? তিনি তো বিলাসবহুল থাকতেই পারতেন। এর আগে আমি বেশ কিছুদিন আগে আমাদের এই এপি অকপটেই তুলে ধরেছিলাম ককরোচ জনতা পার্টি, 17-18 জন ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যা, দেশের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য, নেট দুর্নীতি, সিবিএসসি দুর্নীতি, নেট দুর্নীতি, সিবিএসসি দুর্নীতি, শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা সমাজ সমৃদ্ধ করে। আজকের যারা ছাত্রছাত্রী, আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের জীবনটাই আজকে নরকের জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির একটা মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ককরোচ জনতা পার্টি সিজেপি তৈরি হলো, তার যিনি আহ্বায়ক বলতে পারেন অভিজিৎ দীপকে, তাদের কি দাবি? দিল্লির যন্তর মন্তরে তারা আজকে অবস্থানে বসেছেন, অনশন অবস্থান করছেন। আজকে 16 দিন হয়ে গেল। সোনাম ওয়াংচু আজকে মৃত্যুর পথযাত্রী, অথচ সরকার না শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের কথা ভাবছেন। আচ্ছা, সেটাও দরকার নেই, কিন্তু সরকারের থেকে তো একটা গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলনের যেমন অধিকার আছে, একাধিকবার তাদের সাথে অসহযোগিতা করা হয়েছে। একাধিক রাজনৈতিক দল, একাধিক সামাজিক ব্যক্তিত্ব, তারা কি সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন? আমি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলবো না, রাজনীতি তাদের রাজনীতির স্বার্থে করবে, রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি। দেশে যারা সরকার চালাচ্ছেন তারা একটা রাজনৈতিক দল, তাদের একটা মতাদর্শ আছে, তারা তাদের মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু যেখানে সব ক্ষেত্রেই লাগে শিক্ষা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে, ছাত্রছাত্রীদের জীবন ধ্বংসের পথে, সেখানে দাঁড়িয়ে সোনাম ওয়াংচু এই যে মৃত্যুর পথে চলে যাচ্ছেন। এর আগেও গঙ্গা বাঁচাতে এক ভদ্রলোক 110 দিন অনশন করার পর মৃত্যুর পথে, যার পরে তাকে অনেকে নিয়ে কথা বলেছিলেন, কিন্তু কিছু আর হয়নি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শিক্ষা সমাজ, গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য সোনাম ওয়াংচু, ককরোচ জনতা পার্টির যারা আছে, যারা অনশন করছে, সরকার কি পারে না তাদের সাথে একটু কথা বলতে? সরকারের কোনো প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের
নিজেদের অবস্থান জানাতে পারে না, না আগামী দিনে আর এই সমস্যা হবে না, এই কথা বলতে পারে না। দেখুন, এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলবো না, কিন্তু আমি যে কথাগুলো তুলে ধরবো, আজকে দুজন ব্যক্তি, তারা কেউ ভারতবর্ষের বা রাজ্যের নামি দামি ব্যক্তি নয়, সমাজ মাধ্যমে অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু যে মূল্যবান কথাগুলো তারা তুলে ধরেছে আজকের এই এপিসোডে, আমি যেমন প্রার্থনা করব সরকারের কাছে, তারা যেন একটা বিহিত করেন, কথা বলেন। সোনামা অঞ্চু স্যারের কাছে অনুরোধ রাখবো, তিনি আপনার আমাদের দেশের সম্পদ, নিজেকে শেষ করেন না। আর একটা কথা বলবো যে আমরা জাগবো, শিক্ষা ব্যবস্থা জাগাবো। আসুন সবাই প্রার্থনা করি যেন সোনাম অঞ্চু, তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তিনি অনশন থেকে অব্যাহতি নিন। আর সবাই মিলে সরকারের কাছে একটাই নিবেদন, গণতান্ত্রিক দেশে আলোচনা সমালোচনা দুটো করে অধিকারী আমাদের আছে। অন্তত পক্ষে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এই যে সমস্যা, এই ককরোচ জনতা পার্টি, এই সোনাম অঞ্চুর যে এত বড় একজন মানুষ, আমাদের সমাজের একজন কি বলবো গর্ব, একটা রত্ন, তাকে বাঁচাবার জন্য অন্তত পক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনায় বসুক, একটা বিহিত করার ব্যবস্থা করুন। আমি দুজন সাধারণ মানুষ যারা সমাজ মাধ্যমে যে অসাধারণ বক্তব্য তুলে ধরেছে সেটাই তুলে ধরব। দেখতে থাকুন সকলের সাথে সমাজের মাঝে। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत 15 दिन से वो इंसान भूखा है। এই লোকটার নাম হলো সোনাম ওয়াংচুক। ওই যে 3 ইডিয়টস সিনেমা দেখেছিলেন আমির খানের, রাঞ্চো, সেই সোনাম ওয়াংচুক আজকে 16 দিন ধরে অনশন করছেন দিল্লির যন্তর মন্তরে। ডাক্তাররা বলছে যে কোনো টাইমে অঘটন ঘটে যেতে পারে। তার পালস রেট কমে গিয়েছে, তার ওজন কমে গিয়েছে অনেকটা। তিনি একজন সায়েন্টিস্ট, তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি মনে করলে যে কোনো দেশে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারেন। কি দরকার তার যন্তর মন্ত্রে বসে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তোলা? তিনি তাও করছেন আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের জন্য। নিট এক্সাম হয়েছে, কোশ্চেন পেপার লিক হয়েছে, অনেক স্টুডেন্ট সুইসাইড করেছে। সোনাম ওয়াংচুক সহ স্টুডেন্টদের দাবি যে আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রী যেন পদত্যাগ করে। আপনারা প্রশ্ন করতেই পারেন, সে কি এমন সায়েন্টিস্ট, কি কাজ করেছে? সে আইস স্তূপ তৈরি করেছে। এই যে লাদাখে গরমকালে জলকষ্ট হয়, তাই তিনি বর্ষাকালে আইস স্তূপ তৈরি করেছেন, যে এমন এক আইস স্তূপ তৈরি করা হবে যেখানে ফ্রেশ ওয়াটার থাকবে এবং গরমকালে যখন জলকষ্ট হবে ওই আইস স্তূপ থেকে জল নিয়ে মানুষ খেতে পারে। আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর জন্য, ইন্ডিয়ান আর্মির জন্য সোলার টেন্ট আবিষ্কার করেছেন, যাতে ওই মাইনাস টেম্পারেচারের মধ্যেও টেন্টের ভিতরে যাতে স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকে। অথচ তিনি তার আবিষ্কারের কোনো পেটেন্ট নেয়নি, ওপেন লাইসেন্স করে দিয়েছেন যে কেউ এই থিওরি নিয়ে এই জিনিসটা কাজ করতে পারে। যে সায়েন্টিস্টকে সারা বিশ্বের সায়েন্টিস্টরা চাইছে যে আমাদের সাথে এসে কাজ করো, সেই সায়েন্টিস্ট আজকে মরতে বসেছে যন্তর মন্তরে। দেশের মানুষের কোনো ফারাক পড়ছে না। অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে দিল্লির যন্তর মন্তরে আমাদের দেশেরই একজন মহান সায়েন্টিস্ট অনশন করছে। সত্যি এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্য। आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ, मगर आज दिन भर में बहुत लोग आए समर्थन में, और उनमें कुछ जाने माने हस्तियाँ भी आए, जिनमें भूतपूर्व मंत्री केरला के, त्रिपुरा के और फिल्मी सितारे प्रकाश राज भी आए। दोस्तों, आप उन्हें विलन की तरह जानते हैं, मगर फिल्मी पर्दों पर असली ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा वो हीरो हैं। दरअसल हीरो कौन हैं? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा, जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों। बल्कि उन्हें ही नहीं, मैं तो तमाम देश के जो मार्गदर्शक हैं, वो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हों, या पुलिस के अफसर हों, या सरकार में अधिकारी हों, या फिर राजनीतिक नेता हों, चाहे कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों। बल्कि जो बीजेपी से हैं उन्हें ख़ास कर कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों,
और अपने पार्टी को सही रास्ते पर रखें ताकि ये पार्टी लोगों में लोकप्रिय बनी रहे, वरना लोगों का विश्वास टूटता जाएगा, जो कि पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आत्मा में झांक कर देखें, ज़मीर में, कि आप सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े हैं या फिर अपने धन दौलत के साथ। आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कितने हीरो हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनिए, सच्चे हीरो, रियल लाइफ हीरो। जय हिंद। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरेगा, एक मैसेज मरेगा कि इस देश में पीसफुली सवाल पूछने की भी कोई कीमत नहीं बची। आज मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं। सोनम वांगचुक वही इंजीनियर, टीचर और इनोवेटर जिनकी लाइफ से इंस्पायर होकर 3 इडियट्स का फुनसुक वांगड़ू वाला कैरेक्टर बना था। आइस तूपा जैसे इन्वेंशंस, इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड शेल्टर्स, लद्दाख के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन मॉडल और रेमन मैगसे अवार्ड तक जीतने वाले इंसान आज वो अपनी पर्सनल फेम के लिए नहीं बल्कि एक कॉज के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनके डिमांड्स एजुकेशन सिस्टम पर अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है। सोचिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट और जेईई के लिए अपने मेंटल हेल्थ दांव पर लगाते हैं और जब पेपर लीक होता है, डमी कैंडिडेट्स पकड़े जाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज चीटिंग की खबरें आती हैं, तो सिर्फ एक एग्जाम फेल नहीं होता, पूरा भरोसा फेल हो जाता है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तब अक्सर सबसे ज्यादा साइलेंस होता है। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। 2018 में जीडी अग्रवाल, एक फॉर्मर आईआईटी प्रोफेसर, एनवायरमेंटल इंजीनियर और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले मेंबर सेक्रेटरी, गंगा को बचाने के लिए 111 दिन तक का हंगर स्ट्राइक कर बैठे थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, बाद में सबने उनकी तारीफ की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हम फिर वही मिस्टेक करने वाले हैं? चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक बात जो कॉमन होनी चाहिए वो है कि जो इंसान पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहा है उसकी बात तो सुननी चाहिए ना। एक मैच्योर डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ सिर्फ इलेक्शन नहीं होती है, उसकी स्ट्रेंथ इस बात से होती है कि वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को भी सुन पाती है। अगर आपको लगता है कि पीसफुल आवाज को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद एक और ट्रेजेडी होने से पहले हम कलेक्टिवली किसी की आवाज तक पहुंच सके। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर, होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर 2 तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफ़े पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुजरा है जो इन 20 छात्रों पर गुजरा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को
आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर, और एक दिन का, 13 दिन नहीं, एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आएँ, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। नमस्कार, अभिनंदन सभी को। जुलाई जी हाँ, तो 6वां दिन मेरे अनशन का खत्म होने जा रहा है। मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, मगर मेरी आत्मा, मेरे रूह बिल्कुल वैसा ही फुर्तीला है और रहेगा। आज मैं आप लोगों को एक नई खबर बताना चाहता था, जिसे कि खुशखबरी भी कहा जा सकता है। जैसा मैं कहता रहा हूँ, 2 मुद्दे मेरे दिल के करीब हैं, शिक्षा और पर्यावरण। और सत्य और अहिंसा मेरा रास्ता रहा है और न्याय मेरी मंजिल। तो जहाँ शिक्षा के लिए हम अभी यहाँ बैठे हैं, सुधार के लिए, वहीं पर्यावरण और संस्कृति में हम जो लद्दाख का मसला था, पिछले 6 सालों से संघर्ष करते आए हैं। तो आज ही लेह में एक वार्ता हुई लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच, और उसमें लद्दाख के जो बचे हुए मसले थे उन्हें लगभग हल कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय राजी हुई कि वो लद्दाख में एक खास किस्म का लोकतंत्र स्थापित करेंगे, जैसा लोगों की अपेक्षा थी, और वैसे ही संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के भी उपाय किए जाएंगे, जैसा लोगों की अपेक्षाएं थी। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने आपको आवाज दी, कभी अनशन करके, कभी पदयात्रा करके, कभी जेल जाकर, और फिर आपने भी वो आवाज भले ही देर से मगर सुनी। अब मैं चाहूंगा सरकार से विनम्र विनती करने की कि शिक्षा में जो ये मसला है, जो ये जवाबदेही है, वो भी आप पूरी करें। इससे आप छोटे नहीं होंगे। गलतियां होती हैं, गलतियां करने से आप इंसान बनते हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जब आप गलतियों को कबूल करते हैं, मानते हैं, तो आप महान बनते हैं। तो इसी तरह जो शिक्षा में गलतियां हुई, जिनके वजह से लाखों बल्कि करोड़ों बच्चों के जीवन में बहुत असर पड़ा, और 20 से ज्यादा बच्चों ने तो अपनी जानें दी, तो इसे कबूल करें और इसकी जवाबदेही लें। ये हमारी विनती है, विनम्र विनती है। और अगर इसमें आप सही कदम लेते हैं तो लोग आपकी सरकार को प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे। हम यहाँ पर किसी सरकार की तख्ता पलट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम इसी सरकार में सुशासन लाने आए हैं, गुड गवर्नेंस लाने आए हैं, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सुनती है, लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है और संवेदनशीलता रखती है। तो ये शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसे सुना जाए, और जब इसे नहीं सुना जाते तो ऐसे तत्व जो कि शांति में विश्वास नहीं करते, उनकी बात हावी होती है कि ये सब कुछ नहीं है, अशांतिपूर्ण तरीकों से ही मनवाए जा सकते हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों में हुआ भी। तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के तौर पर शांतिपूर्ण तरीकों को पुरस्कृत करे,
ना कि अशांतिपूर्ण तरीकों का इंतजार करें। हेलो, नमस्कार और सलाम प्यारे प्यारे कॉकरोचों। कल मैं आप लोगों से मिलने लद्दाख से आ रहा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां मैं आप लोगों के साथ चंद घंटे बिता पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। चलिए बता देता हूं, वहां एक इनिशिएटिव है स्विस गवर्नमेंट सपोर्टेड, जिसे जेस्डा कहते हैं, जिनेवा साइंस एंड डिप्लोमेसी एंटीसिपेटर्स, जो कि दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट को लाकर पृथ्वी के भविष्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं। और हम कोई 20 साइंटिस्ट इस बार जमे हुए पृथ्वी, जिसे क्रायोस्फीयर भी कहते हैं, उसके बारे में चिंतन करेंगे। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया इसी सिलसिले में वीज़ा लेने के लिए, और वीज़ा मांगना था तो मैंने 5 साल का मांग लिया। वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए, और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। और खुशी इस बात की हुई कि उनके दीवारों पर हमारे लद्दाख में जो हमने आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, उनकी तस्वीरें सजी हुई थी दीवारों पर। वीज़ा तो मुझे उसी शाम उन्होंने दे दिया, और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी फ़ीस क्या होगी, तो वो बोले आपको वीज़ा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है, क्योंकि मुझे अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब, 6 महीने की जेल, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट के ज़मीनों को वापस लेने की कार्यवाही, और ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई सबके रेड्स, ये सब मुझे अपने देश ने दिया। और यहाँ दुनिया के भविष्य के चिंतन के लिए बुला रहे हैं बाहर के देश। थोड़ा दुखी हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछें कि क्या हमारे देश में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बदलना है तो उसे कौन बदलेगा। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। जय हिंद।